Hello everyone, welcome to PIB Samachar. This is the third video for the month of February. We're going to cover PIB news from 16th February to 28th February. Alright, this is the same PDF. Okay, we have the extended news below, so we will be scrolling things, and whichever news is after 15th of February, we'll be taking that. Alright, so let's begin now. Yeah. See, the first news is from the Vice President Secretariat. Vice President Shri C.P. Radhakrishnan releases book The Sage Who Reimagined Hinduism, The Life, Lessons and Legacy of Shri Narayan Guru by Dr. Shashi Tharoor. Let me just highlight this part. Yeah. डॉक्टर शशि थरूर. तो समटाइम्स एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछ लेते हैं कि नई बुक्स वगैरह आती हैं तो वो किसने लिखी हुई होती हैं. शशि थरूर इज़ अ फेमस पर्सनालिटी. लास्ट टाइम यूपीएससी सीएससी में भी एस जयशंकर जी की बुक पूछी गई थी. तो जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ दिस. ऑल राइट. सो द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ, लेसन्स एंड लीगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु is written by Dr. Shashi Tharoor, right? So let's read something about Narayan Guru. He noted that Guru's immortal message, क्या है उनका message? One caste, one religion, one God for humankind was not only a spiritual proclamation but also a revolutionary call for equality, dignity, universal brotherhood. He highlighted the role of Shri Narayana Dharma Paripalana Yogam, right, established in 1903 in carrying forward the Guru's mission through education, institution building and socio-economic upliftment. Alright, remember these things. Next देखिए, Vice President Shri C.P. Radhakrishnan releases coffee table book. क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन. तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पे बुक लिखी है, ऑथर्ड बाय श्री विजय गोयल. ठीक है, तो विजय गोयल ने लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़. दिस वन, इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टेटमेंट. वी नो Emmanuel Macron was in India, right, during the AI summit. तो following that visit we have joint statements given over here. So let's see. Mr. Emmanuel Macron, he participated in the Artificial Intelligence Impact Summit 2026, right? So the two leaders held bilateral talks and jointly inaugurated the 2026 India-France Year of Innovation. India-France Year of Innovation in Mumbai. Both leaders agreed to elevate relations to a special global strategic partnership. तो फ्रांस के साथ हमारी क्या बन गई है अब? Special global strategic partnership, right? Both countries celebrated the 25th anniversary of strategic partnership in 2023, right? On the occasion of which they adopted the Horizon 2047 roadmap, right, to set the course for bilateral relationship up to the year 2047. हमारा जो है 100 years होने वाला है, right? The centenary year of India's independence, right? The centenary diplomatic relations between the two countries and also 50 years of strategic partnership with France, right? So this becomes important. President Macron extended an invitation to Prime Minister Narendra Modi to participate in the G7 summit hosted by France in 2026. तो इसी न्यूज़ के माध्यम से हमें क्या पता चल गया कि G7 summit होने वाला है फ्रांस में इसी साल में, right? So वहाँ पे obviously our leaders will be participating. Prime Minister Modi to participate in the Africa Forward partnerships between Africa France for Innovation and Growth Summit. यहाँ पे मोदी जी जाने वाले हैं, right? तो ये this is in Nairobi, Kenya. Okay. See, a list of outcomes from the visit of President of French Republic to India, right? तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हुआ है. Upgrading of the India-France relationship to special global strategic partnership. Then establishment of annual foreign ministers dialogue, right? Launch of the India-France Year of Innovation. This becomes important. Launch of India-France Innovation Network हुआ है.
फिर इनॉग्रेशन ऑफ हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली कहाँ होने वाला है, वेमगल कर्नाटका में, राइट। अनदर डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह हुआ है, जॉइंट वेंचर वगैरह चीज़ें हुई हैं, ओके। yes, joint declaration of intent for cooperation in critical minerals and metals है, letter of intent to establish center on advanced materials between DST and CNRS, right। इसके बाद देखिए, I have put the screenshot, okay, kindly go through that. There are many things happening whenever leaders meet, right? Yeah, amending protocol on the, I'm so sorry for this, yeah, double tax avoidance agreement between India and France, okay। T hub Nord France, इनकी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। लॉन्च ऑफ इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ एट एम्स न्यू दिल्ली, राइट। इसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट टू एस्टेब्लिश अ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स, ऑल राइट। Yes, let's move on to the next news now. Prime Minister condoles demise of Pu. I don't know how to pronounce this. Okay, this name Walte. All right. So yeah, Walte was an Indian politician from Manipur. Okay, he was a 3-time member of Manipur Legislative Assembly. उनके बारे में कुछ चीज़ें दी है। थैनलॉन कंस्टिट्यूएंसी में थे वो फर्स्ट, वो मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। उसके बाद वो बीजेपी में गए, ओके। कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। फिर पोर्टफोलियोज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्राइबल अफेयर्स, हिल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उनको मिला है। रोल ऑफ चीफ एडवाइज़र था उनका, राइट। तो वाल्टे वॉज ब्रूटली अटैक्ड बाय मेती मॉब इन इम्फाल, ओके, while returning from meeting वगैरह दिया है। he belonged to the Paite tribe and adopted the Zomi identity in preference to the Kuki-Zo identity, alright। तो उनकी डेथ हुई है वाल्टे की, तो उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मैंने निकाली। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट्स अ टीम ऑफ फिल्म बूंग ऑन विनिंग बाफ्ता in children's and family film category, calls it moment of pride for Manipur and nation, right। The British Academy of Film and Television Arts, BAFTA, announced Boong as the winner in the children and family film category at the BAFTA film award। so remember this, मतलब एग्जाम्स में पूछी जाती है ये चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स याद वाशिम, द वर्ल्ड Holocaust Remembrance Center. PM Narendra Modi visited Israel, right? Just few days before the attack started. So this becomes important for us, okay? Prime Minister Shri Narendra Modi accompanied the Prime Minister of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu, right? Visited Yad Vashem, क्या है? The World Holocaust Remembrance Center है ये, कहाँ है? जेरूसलम में है, okay। Pay tribute to the victims of Holocaust, all right। so remember this location, okay। Next, Prime Minister congratulates Jammu and Kashmir team on their first ever Ranji Trophy victory। तो रणजी ट्रॉफी फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर टीम को मिली है, पहली बार उनको ये ट्रॉफी मिली है। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर reaffirms resolve to harness science and technology for national development and global good on national science day। तो नेशनल साइंस डे कब होता है ये याद रखना है, 20th Feb को, ओके। दैट्स इट। इस पे इन्होंने कोई टैगलाइन वगैरह नहीं दी थी, सो आई हैव नॉट इंक्लूडेड इट, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में आई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिलीजेस रिकमेंडेशंस ऑन द ऑक्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ओके। उनकी कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं इन द फ्रीक्वेंसी बैंड्स आइडेंटिफाइड फॉर इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस IMT, ओके। तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह निकाली है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ओके। ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट उसमें आया नहीं था, सो आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में देखते हैं, 5 Feb की है। लेट्स सी, जस्ट गिव मी अ मिनट। या, India is regarded
in Mongolia as a sacred geography and a spiritual neighbor. ओके, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ये स्टेटमेंट है. ओके, द 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कल्चरल इंटरफ्लो बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया के साथ. ओके, ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बृहत्तर भारत एंड एरिया स्टडीज ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स. हो गया, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत. तो वहाँ पे मंगोलिया के साथ ये कॉन्फ्रेंस हुई थी. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. Amid the AI summit in Delhi, Union Minister Shri Shivraj Chauhan launched the artificial intelligence space scheme Bharat Vistar Phase 1 in Rajasthan. Okay, तो भारत विस्तार फेज 1 क्या है देखिए. The objective of the scheme is to provide farmers with various agriculture related information with the help of technology. Okay, through this farmers can use their smartphones or ordinary mobile phones to find solutions to their problems as well as obtain information वगैरह इससे मिलेगी. ठीक है, तो भारत विस्तार याद रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. 1 plant per day रेजोल्यूशन completes 5 years. तो ऐसे रेजोल्यूशन देखिए 5 years 10 years कंप्लीट होते हैं, तो these things will become important. ओके, 1 plant per day रेजोल्यूशन. ऑलराइट, फ्रॉम नर्मदा जर्नी to Ankur campaign, the green background. During the historic Narmada Seva Yatra, ठीक है, led by Shri Shivraj Chauhan in 2017, more than 6 crore plants also were planted in Madhya Pradesh. ओके, तो ये इनकी इनिशिएटिव्स हैं एमपी गवर्नमेंट के. तो एक के बाद एक उनके माइलस्टोन्स के बारे में न्यूज़ आई हैं. सेम सीक्वेंस में अंकुर कैंपेन थी, वॉज लॉन्च इन विच सिटीजन्स वर एनकरेज टू प्लांट अ सैपलिंग, अपलोडिंग इट्स फोटो वगैरह, सेल्फी वगैरह उनको अपलोड करनी थी. तो अप्रॉक्सीमेटली 1 crore प्लांट्स वर प्लांटेड. ऑलराइट, तो उसको क्या हो गया, 5 years हो चुके हैं. नेक्स्ट देखिए. इंडिया न्यूजीलैंड होल्ड फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन, किस पे है, हॉर्टिकल्चर कोऑपरेशन. तो इट्स वेरी ऑब्वियस. ओके, इंडिया न्यूजीलैंड इज नोन फॉर हॉर्टिकल्चर, डेयरी. ओके, तो उसमें हमारा क्या हुआ है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग उनकी हुई थी. राइट, इंडिया न्यूजीलैंड कन्वीन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन हॉर्टिकल्चर कोऑपरेशन. ओके, marking significant step under the memorandum of cooperation. ओके, ये साइन हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़. मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में अगर कुछ आया है, नॉट मच. ओके, यस, लुक. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आया है. इंडिया स्ट्रेंथन्स ग्लोबल फूड सिक्योरिटी. ओके, एफसीआई साइंस 5 year क्या है, राइस सप्लाई एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. देखिए, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट. 5 year राइस सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ. ऑलराइट, लेट्स सी. डिफेंस में बहुत चीज़ें आई हैं एक्चुअली. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत देखिए, मिलान 2026. ओके, मिलान 2026 रक्षा मंत्री interacts with visiting navy chiefs and naval delegations from 9 ASEAN member states. Okay, on the sidelines of Milan 2026 naval exercise, रक्षा मंत्री held an interaction उनके बीच में हुई है. ऑलराइट, तो यहाँ देखिए कमिटमेंट है फॉर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी वगैरह एंड सेम विजन ऑफ the Mahasagar, right? Mutual and holistic advancement for security and growth across regions. The exercise has grown from its modest 1995 में ये begin हुआ था मिलन जो है with 4 foreign navies, okay, to its largest ever edition in February 2026. ऐसा होने वाला है. right? अभी देखिए इंडियन नेवी टू कमीशन अंजदीप. ओके, अंजदीप क्या है देखिए. द इंडियन नेवी इज सेट टू एनहांस इट्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज विद द कमिशनिंग ऑफ अंजदीप. ये क्या है, द 3rd vessel ऑफ द 8 ship एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर craft, right? ASWSWC project. The warship will be formally commissioned into the Eastern Naval Command at the Chennai port. Okay, the vessel is engineered to act as a dolphin hunter.
Dolphin Hunter focused on the detection, tracking, and neutralizing of enemy submarines in coastal areas. The ship is packed with an indigenous cutting-edge anti-submarine warfare weapons and a sensor package है, including the hull-mounted sonar Abhay. क्या है? Hull mounted sonar Abhay and armed with lightweight torpedoes and ASW rockets. In addition to primary ASW जो role है, okay, it will undertake coastal surveillance, low intensity maritime operation, LIMO कहा जाता है उसको, and search and rescue operations. All right, तो the 77 meter long ship features क्या है? high speed water jet propulsion system है उसके पास, enabling it to achieve the speed of 25 knots for rapid response. all right, तो ये क्या है? INS जो है अंजुदीप के बारे में चीज़ें दी गई हैं. नेक्स्ट देखिए, INS सुदर्शनी मार्क्स हिस्टोरिक पोर्ट कॉल एट सफागा इजिप्ट ड्यूरिंग लोकायन 26. लोकायन चल रहा है, राइट? तो INS सुदर्शनी इजिप्ट पहुंच गई है. उतनी ही न्यूज़ है यहाँ पे. नेक्स्ट देखिए, इंडिया US जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइजेस वज्र प्रहार, राइट? तो किसके बीच में है? इंडिया एंड US के बीच में वज्र प्रहार टू बी कंडक्टेड इन हिमाचल प्रदेश. ओके, जस्ट रिमेंबर, वज्र प्रहार किसके बीच में है? इंडिया एंड US के बीच में. द एम ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार इज टू प्रमोट मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू एनहांस्ड इंटरऑपरेबिलिटी वगैरह चीज़ें दी है. ओके, सो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट देखिए, इंडिया जापान जॉइंट एक्सरसाइज क्या है? धर्म गार्डियन कमेंसेस इन चौबाटा उत्तराखंड. ठीक है, तो इंडिया और जापान के बीच में क्या है? धर्म गार्डियन, ये याद रखना है. एम देखिए, strengthen again military collaboration, enhance combined capabilities वगैरह, joint operation in semi urban environment में ये होने वाली है चीज़, राइट? नेक्स्ट देखिए, NIM and JIM and WS joint team successfully summits Mount Aconcagua इन अर्जेंटीना, राइट? तो इस समिट पे उन्होंने हाइक किया. ओके, वो लोग पहुंचे वहाँ पे. NIM क्या है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी एंड जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स. तो दे हैव रीच्ड व्हाट? माउंट एकोंकागुआ. इसको मैप में देखना ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, अर्जेंटीना में ये माउंट है. नेक्स्ट देखिए, IAF एंड EAC कप रेसेस हेल्ड एट रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब. जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स कप एंड ईस्टर्न एयर कमांड कप रेसेस वर कंडक्टेड. ठीक है, तो यहाँ रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब में ये रेस हुई थी. तो RCTC जो है founded in 1847 and bestowed the title Royal in 1912, remains one of the most prestigious horse racing organizations in the country. Since then, it continues to host the IAF and EAC Cup races. Alright, तो ये चीज़ें याद रखनी है. नेक्स्ट देखिए, रक्षा राज्य मंत्री inaugurates चुंगथांग लाचेन एक्सेस एंड तारामचू ब्रिज इन सिक्किम. So this becomes important for geography, right? So both of these axes and this bridge is located in Sikkim. Okay, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे दी है. You can pause the video and read it. नेक्स्ट देखिए, इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट्स एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 एट पोखरन रेंज जैसलमेर में. ठीक है, तो वायु शक्ति 26 ये एक्सरसाइज हुई थी. नेक्स्ट लेट्स गो टू, आई थिंक दिस इज मेटी में न्यूज़ आई है. Just give me a minute. Yes, देखिए, वॉइस एरा launched on भाषिनी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एट इंडिया AI इम्पैक्ट समिट. ओके, तो वॉइस एरा लॉन्च हुआ है. यहाँ पे देखिए, द डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन अंडर द डिजिटल इंडिया Corporation, Ministry of Electronics and Information Technology marked a major milestone in India's digital public infrastructure journey with the launch of Voice Era. Voice Era है क्या? An open source end-to-end voice AI stack
ठीक है, ये क्या है, ओपन सोर्स एंड टू एंड वॉइस एआई स्टैक है एट द इंडिया एआई समिट, यहाँ पे लॉन्च हुआ है ये, ठीक है। द लॉन्च वॉज लेड बाय श्री अमिताभ नाग वगैरह दिया है, ओके। तो डिवीजन विद एक स्टेप फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद कॉस वगैरह यहाँ पे दिया है। डिप्लॉयड ऑन द भाषिनी जो है नेशनल लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉइस एरा एस्टैब्लिशेस अ नेशनल एग्जीक्यूशन लेयर फॉर मल्टीलिंगुअल वॉइस एंड लैंग्वेज एआई, ओके, डिजाइन टू बी ओपन, प्लगेबल, इंटरऑपरेबल, क्लाउड डिप्लॉयबल एंड ऑन premise ready. Just a minute. Yes, let's move on to the next one. METI launches Blockchain India Challenge. क्या है? Blockchain India Challenge to promote blockchain based digital governance solution. तो याद रखना है, देखिए यहाँ पे फिर से CDAC आ गया है, implemented by CDAC with the support of METI. तो ये याद रखना है। Blockchain India Challenge किसने लॉन्च किया है? METI with implementation by CDAC. Okay, तो just remember that. Goal of Blockchain India Challenge is to develop permissioned blockchain based solution prioritizing regulatory control and security, okay, for government use cases, okay, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया एंड स्वीडन deepen AI partnership through CTAC framework. CTAC framework. India AI Mission and Business Sweden to establish Sweden India Technology and Artificial Intelligence Corridor. तो यह है CTAC, स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर, ठीक है। पार्टनरशिप एम्स टू स्ट्रेंथन बायलैटरल एआई कोलैबोरेशन, प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ड्राइव रिस्पॉन्सिबल स्केलेबल डिजिटल इनोवेशन, ये होने वाला है, ओके। नेक्स्ट देखिए, यस, दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ओके। तो यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह टू लॉन्च एक्सेस पास फॉर फिशिंग इन, एक्सेस पास लॉन्च किया है फॉर फिशिंग इन EEZ, राइट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एट वेरेवल, गुजरात, ओके। फोकस ऑन ऑपरेशनलाइजिंग द EEZ रूल्स, लाइवलीहुड प्रोटेक्शन एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो कमेंट्स में आप लिखिए EEZ जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो कितने नॉटिकल माइल्स तक होती हैं, ये सारी चीज़ें NCERT में वेरी नाइसली कवर्ड है, ओके, जस्ट गो थ्रू दैट। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे हम देखते हैं। Yeah, I think this news is also there. Union Minister of Health and Family Welfare Shri Jagat Seth Prakash Nadda launches Sahi and Bodh initiatives. Sahi and Bodh initiatives to strengthen responsible health AI ecosystems at the India AI Impact Summit 2026. तो सही क्या है? To guide ethical, transparent and people-centric use of AI in healthcare. Okay, and then National Health Policy 2017 envisioned interoperable, inclusive, scalable digital health ecosystem aligned with the national digital vision. सही क्या है? Strategy for artificial intelligence in healthcare for India. and बोध क्या है? Benchmarking open data platform for हेल्थ AI, ओके। तो ये चीज़ें कभी कभार एग्ज़ाम्स में आ जाती है, तो जस्ट कीप नोट दिस डाउन एंड कीप इन माइंड, ओके। नेक्स्ट देखिए, इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI इन हेल्थ एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जो साइंसेस, एम्स में ये हुआ है, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI इन हेल्थ, ओके। तो दैट्स इट, यू नीड टू रिमेंबर दैट। नेक्स्ट देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर टू लॉन्च टेटनस एंड एडल्ट डिप्थेरिया वैक्सीन एट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, ओके। तो टेटनस एंड एडल्ट डिप्थेरिया के लिए क्या हुआ है? वैक्सीन आई है, ओके, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं न्यूज़ में। देखिए यहाँ पे विल जस्ट रीड दिस, यस, एंटीबॉडी, एक मिनट, हाँ। Extensive scientific evidence indicates that widespread childhood immunization with the DPT group of vaccines has significantly reduced
the incidence of diphtheria and tetanus in many countries. Okay, however क्या है, antibody levels may decline over time, especially in the case of diphtheria, necessitating booster doses. In view of this, in 2006 the WHO, World Health Organization, recommended that countries transition from tetanus toxoid vaccine to TD vaccine. ठीक है, टीटी वैक्सीन से टीडी वैक्सीन तक जाइए, ऐसे WHO का रिकमेंडेशन है. दिस रिकमेंडेशन वाज रीअफर्म्ड इन द WHO टेटनस वैक्सीन पोजीशन पेपर वगैरह दिया है यहाँ पे. ओके, तो टेटनस क्या है? टेटनस इज अ सीरियस डिसीज दैट कॉजेस पेनफुल मसल स्टिफनेस and spasms and can lead to severe health complications including inability to open the mouth, मतलब lock jaw हो जाता है ना, difficulty in swallowing, breathing and may result in death. okay, and उसके बाद आता है diphtheria. Diphtheria is a potential life threatening infection that can cause breathing difficulties, heart failure, paralysis and death. तो ये चीज़ें भी symptoms वगैरह याद रखने important हो जाती है, options में आ जाता है. The TD vaccine क्या है? Tetanus and adult diphtheria vaccine. Absorbed reduced D antigen content है इसमें, reduced D antigen content. Okay, provides protection against both tetanus and diphtheria. ठीक है, prepared by combining, देखो ये भी कभी कभार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, combining purified diphtheria toxoid एंड प्यूरिफाइड टेटनस टॉक्सोइड. तो ये कंबाइन करके वैक्सीन बनाई है. द एंटीजेंस आर एब्जॉर्ब्ड ऑनटू एल्यूमिनियम फॉस्फेट. ठीक है, एब्जॉर्ब्ड ऑनटू एल्यूमिनियम फॉस्फेट विच एक्ट्स एज एन एडजुवेंट एंड थायोमर्सिल इज एडेड एज अ प्रिजर्वेटिव. तो इसमें थायोमर्सिल है प्रिजर्वेटिव. थायो से आप याद रखिए, थायो जिसमें होता है वर्ड उसमें सल्फर होता है, राइट. The introduction of the TD vaccine is aimed at strengthening protection among adolescents and adults and reducing morbidity and mortality associated with these vaccine preventable diseases. तो comments में लिखिए morbidity और mortality क्या होता है. ठीक है, next देखिए, RAV achievers facilitated with जीवन गौरव and आयुर्वेद गौरव सम्मान at नेशनल आरोग्य फेयर हुआ था. ओके, तो RAVs देखिए, हम देखते हैं क्या है इसमें. वैद्याज एसोसिएटेड विद राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर एग्जेम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनको ये अवार्ड्स मिले हैं. तो जीवन गौरव सम्मान मिला है वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी. ठीक है, इनको ही इज अ रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री पद्म भूषण. ओके, एंड ये अवार्ड भी उनको मिला है. हम फिर आयुर्वेद गौरव सम्मान, उसमें conferred upon प्रोफेसर वैद्य श्री राकेश अमरनाथ शर्मा जी, इनको मिला है. फिर वैद्य श्री PM वॉरियर जी, फिर वैद्य श्री रामदास अवध जी है. फिर वैद्य श्रीमती मीनाक्षी उपेंद्र कोठेकर जी, इनको भी मिला है. वैद्य श्री आशुतोष सतीश गुप्ता जी. ठीक है, तो समटाइम्स ये अवार्ड्स ऑनर्स पूछ लेते हैं एग्जाम्स में. नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है आजकल. प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च नेशन वाइड HPV वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर 14-year-old गर्ल्स. ठीक है, तो HPV ऐसी इस बार तो कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आने ही वाला है, HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड. ऑलराइट, देखिए, अ मेजर लीप टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग सर्वाइकल कैंसर एंड एडवांसिंग द विजन ऑफ स्वस्थ नारी. राइट, स्वस्थ नारी सशक्त नारी, ये स्लोगन्स तो है ही न्यूज़ में. तो ये क्या होने वाला है, जो HPV है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलने वाला है फॉर गर्ल्स एज 14 ईयर्स. ओके, और ये नेशन वाइड करना भी ज़रूरी है. राइट, नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आई डोंट थिंक न्यूज़ आई थी. या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिनिस्ट्रीज, देखते हैं कहाँ न्यूज़ है. माइनॉरिटी अफेयर्स, यस, माइनॉरिटी अफेयर्स में देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री किरेन रिजिजू लॉन्चेस व्हाट, निगरानी ऐप, Hajj wristband and AI chatbots of ministry. Okay, so this becomes important. Key achievements showcase किया है through its key schemes like PM JVK,
तो ये थोड़ी न्यूज़ वगैरह है, मतलब स्कीम्स वगैरह है। उसके बाद ये जो निगरानी ऐप है अंडर पीएम JVK स्कीम विच कंट्रीब्यूट्स इन ब्रिजिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ब्रिज क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स है निगरानी ऐप। ओके, नेक्स्ट देखिए, लेट मी चेक, आई थिंक यस, ये देखिए मोस्पी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने निकाला है न्यू सीरीज ऑफ जीडीपी प्रोडक्ट एस्टिमेट्स विद द बेस ईयर, क्या किया है इन्होंने, 2022-23। ओके, तो न्यू सीरीज आने वाली है जीडीपी एस्टिमेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। The Ministry of Statistics and Program Implementation is releasing the new series of annual and quarterly national accounts estimates with the base year 2022-23, which replaces the previous series with the base years of 2011-12. Okay, so this is the new base year now. In case of base year revisions, कहाँ changes हुए हैं, changes are made to capture structural changes in the economy, incorporate latest data sources, improve estimation methodologies, enhance coverage and accuracy. Alright, तो यहाँ पे देखिए I have added these things from PIB itself, उनके images थे key improvements in new GDP series. Okay, तो यहाँ पे segregation of activities in multi activity enterprises है, improved coverages of unincorporated sector। तो इस बार हमने देखा भी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में EPFO ने बहुत सारे जो अनकवर्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स थे उनको इंक्लूजन के लिए बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं, लेबर कोड्स को मर्ज किए हैं, तो उसी डायरेक्शन में ये भी है, इम्प्रूव्ड कवरेज ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, राइट। फिर एडॉप्शन ऑफ डबल डिफ्लेशन एंड वॉल्यूम और सिंगल एक्स्ट्रापोलेशन। ओके, उसके बाद इम्प्रूव्ड बेंचमार्किंग मेथड फॉर क्वार्टरली नेशनल अकाउंट्स सीरीज है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अपडेटेड रूल्स एंड रेशियोज फ्रॉम रिसेंट जो सर्वेज हैं स्टडीज़ हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपडेटेड रेट्स रेशियोज होनी चाहिए। एक्सटेंसिव यूज ऑफ GST एंड वेरियस न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सोर्सेज फॉर क्वार्टरली नेशनल अकाउंट्स हैं। इम्प्रूव्ड एस्टिमेट्स ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी एस्टिमेट्स इंक्लूड होने वाले हैं। रेड्यूस्ड डिस्क्रिपेंसी थ्रू SUT इंटीग्रेशन है। SUT क्या है, सप्लाई एंड यूजेबल टेबल फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसके बाद देखो की हाइलाइट्स है ऑफ न्यू GDP सीरीज, बेस ईयर क्या है 2022-23, अगेन रिमेंबर रियल GDP हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय क्या है 7.6% in the financial year 2025-26 and nominal GDP has witnessed a growth of 8.6%. तो these figures become very important. Real GDP है 7.6% and जो nominal है growth कितना है 8.6%. Okay. Then overall economic performance is primarily on account of robust real growth वगैरह in second quarter and third quarter दिया है। Nominal GDP has registered 11% and 9.7% of growth rates. Okay, ये दो जो years हैं उसमें, तो ये बस थोड़ा सा डेटा वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए ऑन द कंजम्पशन साइड बोथ जो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हैव एग्जिबिटेड मोर देन 7% ग्रोथ रेट इन द ईयर 2025-26। तो दिस न्यूज़ बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट। द फाइनेंशियल ईयर, अभी देखो लॉजिक देखो, द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 has been selected as base year as it represents a recent normal year after COVID. Okay, with availability of robust and comprehensive data across sectors of economy, making it an appropriate benchmark for the new series of annual and quarterly national accounts estimates. So the reason for choosing 2022-23 is here. Okay, वो recent normal year है after COVID. Okay, तो तो देखिए for the new GDP series है, the press release is structured into 3 parts.
पार्ट ए में क्या है, सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स हैं ऑफ एनुअल जीडीपी फॉर द ईयर 2025-26, फिर क्वार्टरली एस्टिमेट्स होने वाले हैं। पार्ट बी में एनुअल एस्टिमेट्स होने वाले हैं ऑफ जीडीपी, ठीक है, एग्रीगेट्स होगा इन 3 सालों का। फिर पार्ट सी में लिंक्स टू एक्सेस वेरियस डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू न्यू सीरीज इंक्लूडिंग डिस्कशन पेपर्स वगैरह चीज़ें होने वाली है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिलीज डेट्स ऑफ बैक सीरीज, मेथड्स, पब्लिकेशन वगैरह आने वाले हैं। कंपैरेटिव टेबल्स होने वाले हैं इन 3 चीज़ों के बारे में। तो ऐसे वो रिलीज़ किया जाएगा डेटा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में कुछ ज़्यादा नहीं आया है। लेट्स सी। ये दोनों भी चीज़ें एक ही पीडीएफ में मर्ज होने के कारण मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड एक्चुअली। यस, देखिए आयुष में अगेन फेवरेट मिनिस्ट्री ऑफ यूपीएससी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पार्टिसिपेट्स इन ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस। क्या है? ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस एट अगरतला हुई थी, बस एम्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, उतना ही है यहाँ पे। ड्यूरिंग द प्रोग्राम द डायबिटीज फोकस्ड आयुर्वेदिक बुक प्रमेह योग संग्रह ऑथर्ड बाय एंड एडिटेड बाय प्रोफेसर वैद्य राजाराम महतो वॉज रिलीज। ठीक है, तो ये बुक ऑथर्ड बाय प्रोफेसर राजाराम महतो ये रिलीज हुई थी, डायबिटीज फोकस्ड। उतना ही न्यूज़ है यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का हमने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से कवरेज किया था, राइट? या जस्ट अ सेकेंड। नॉर्थ ईस्ट रीजन का भी हमने कवर किया था। एनवायरनमेंट, यस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में न्यूज़ आई है। देखिए, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर अनाउंसेस बर्थ ऑफ 3 चीता कब्स। ठीक है, 3 चीता कब्स एट कूनो नेशनल पार्क। कहाँ पे है? कूनो नेशनल पार्क, मार्केट इन योर एटलस। ओके, नंबर ऑफ सर्वाइविंग इंडिया बॉर्न चीता कब्स राइजेस टू 27 एंड टोटल पॉपुलेशन एट 38। ओके, तो टोटल पॉपुलेशन हो गई है 38। तो कूनो नेशनल पार्क में ये और 3 चीता ऐड हुए हैं। ये मिनिस्ट्री टू ऑर्गेनाइज हिम कनेक्ट ऑन द साइडलाइंस ऑफ टेरी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनिशिएटिव टू ब्रिंग टुगेदर हिमालयन रिसर्चर्स, okay, industries and policy makers to facilitate collaborations, pilot deployments and funding channels. The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change is organizing HIM Connect as a part of the Energy and Resources Institute's टेरी या फिर टेरी, ओके, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये हुआ था। हिम कनेक्ट ये क्या है? इज अ प्लेटफॉर्म एम्ड एट कनेक्टिंग रिसर्चर्स वर्किंग इन द इंडियन हिमालयन रीजन विथ स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स एंड पॉलिसी मेकर्स टू इनेबल द स्केलिंग एंड ऑन ग्राउंड एप्लीकेशन ऑफ द रिसर्च आउटकम्स। ओके, तो ये याद करना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, हिम कनेक्ट। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी। I think we had covered this, right? Ministry of Labor and Employment का ESIC commences 75th foundation year celebration उनका हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस में कुछ नहीं, बस मार्च 3 पे क्या था? टोटल लूनर एक्लिप्स था। ओके, 12 फाल्गुना 1947 सकाएरा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और जो विक्रम संवत कैलेंडर है उनमें कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उनका डिफरेंस कितने ईयर से आता है। देयर इज़ अ मेथड टू इट। ओके, या तो द इक्लिप्स के बारे में थोड़ी चीज़ें हैं, विजिबिलिटी वगैरह। मुझे एक बात यहाँ पे पता चली कि PIB से पता चली, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्लिप्स भी होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्लिप्स इज 1.155। तो ये मुझे बस नई चीज़ पता चली थी, दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड इट। ओके, लूनर एक्लिप्स कब होता है? ऑकर्स ऑन अ फुल मून डे when the earth comes in between the sun and the moon and when all the 3 objects are aligned, right? So that's it. A total lunar eclipse will occur when the whole moon comes under the
umbral shadow of the earth, and the partial lunar eclipse occurs only when a part of the moon comes under the shadow of the earth. Okay, आगे देखते हैं हम. Yes, this is under the Ministry of पंचायती राज. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ था ऑन मेरी परंपरा मेरी विरासत, हेल्ड इन न्यू दिल्ली टू प्रिजर्व ट्राइबल हेरिटेज. ओके, तो यहाँ पे होने वाला डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटल प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल हेरिटेज इन स्केड्यूल्ड एरियाज टेकन अप बाय छत्तीसगढ़. ओके, तो ये बस होने वाला है. जस्ट रिमेंबर, मेरी परंपरा मेरी विरासत इज रिलेटेड टू ट्राइबल हेरिटेज. ऑलराइट, इसके बाद AI driven gene sequencing to power personalized medical prescriptions. वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी ना कभी होने ही वाला था. जस्ट इमेजिन, आपकी जीन सीक्वेंसिंग हो रही है और आपको पर्सनलाइज मेडिसिन मिल रहा है, ना कि जनरलाइज्ड. उससे आप कंप्लीटली ठीक भी नहीं होते हैं, है ना. तो अगर personalized medical prescriptions मिल रहा है तो it's well and good, right? So AI driven gene sequencing undertaken by the Department of Biotechnology promises to power India's transition towards personalized medical prescriptions and predictive medicine. ये होने वाला है. Okay, नेक्स्ट देखिए, साइंटिस्ट अनलॉक न्यू कैथोड मटेरियल एनेबलिंग जिंक आयन बैटरीज फॉर ग्रिड स्टोरेज. तो न्यू कैथोड मटेरियल आने वाला है, इनेबलिंग जिंक आयन बैटरीज आने वाली है. ओके, सो देखिए ये PIB में ही आया था. इट लुक्स लाइक इट कम्स फ्रॉम सम टेक्स्ट बुक, राइट. इन अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी स्टोरेज, researchers have developed a novel cathode material that dramatically क्या है, enhances the performance and stability of the aqueous zinc ion batteries. ओके, तो एक नया क्या है, कैथोड मटेरियल आया है. तो देखिए, aqueous zinc ion batteries which use water based electrolytes, क्या है, water based electrolytes are hailed as safe, cost effective and environmentally benign contenders for storing energy from renewable sources like solar and wind. तो जो zinc metal है offers high theoretical capacity, abundant reserves and used directly as the anode. ओके, जो जिंक मेटल होता है. हावेवर द डेवलपमेंट ऑफ हाई कैपेसिटी लॉन्ग लास्टिंग कैथोड मटेरियल्स, ये क्या था, एक चैलेंज था. तो अभी क्या हुआ है, एक न्यू मटेरियल डेवलपमेंट में रिसर्च जारी हो चुकी है ना. तो दिस मेटालिक फेस मटेरियल पजेसेस हाई सरफेस एरिया है, एनहांस कंडक्टिविटी है ना, which facilitates faster electrochemical जो है reactions, greater charge storage वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे. ओके, एक मिनट. हाँ, yes, the DST synthesized sulfur vacancy induced 1T phase molybdenum disulfide. ओके, तो ये है वो मटेरियल, सल्फर वैकेंसी इंड्यूस्ड 1T फेज मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड. उसका शॉर्ट फॉर्म 1TMO, जो मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड का फॉर्मूला है. मटेरियल दैट प्रोमिसेस टू मेक जिंक बैटरीज मोर वाइबल फॉर लॉन्ग स्केल जो है ग्रिड स्टोरेज. तो ये याद रखना है आपको. दे आइडेंटिफाइड 0.2 to 1.3 वोल्ट्स जो जिंक आयन है एज द आइडियल ऑपरेशनल विंडो. ओके, तो ये कभी कभार साइंस एंड टेक में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, यू नीड टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट देखिए, कोल माइंस इन झारखंड हेल्प रिट्रेस अ लॉन्ग लॉस्ट वर्ल्ड. तो कहाँ कोल माइंस मिली है, वहाँ पे जो है रिसर्च देखिए क्या आया है. ओपन कास्ट कोल माइंस इन झारखंड हैव प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ अ लॉस्ट इकोसिस्टम that existed much before humans or even dinosaurs existed. Evidence buried in the mines helped retrace the dense swampy forest थे वहाँ पे, and network of rivers that prevailed in India, which formed part of the southern supercontinent Gondwana land nearly 300 million years ago. क्या पता कि झारखंड में ये सब चीज़ें भी थी, है ना. तो ये देखिए, न्यू मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी लेड बाय बिरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस, वेरी फेमस, राइट, एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर DST, collected paleobotanical and geochemical evidence from the
कोल्ड माइन है इन झारखंड नॉर्थ करणपुर बेसिन है, करणपुर बेसिन. Okay, it uncovered an extraordinary fossil record of ancient plants and microscopic chemical signals थे that together paint a vivid picture of this vanished ecosystem वगैरह दिया है. Okay. India alongside Antarctica, South Africa, South America, Australia कंस्टिट्यूटेड गोंडवाना लैंड है ना, गोंडवाना लैंड में. तो वहाँ पे एक फिगर दिया था, उसमें प्लांट फॉसिल थे. ओके, रिकॉर्डेड फ्रॉम अशोका कोल्ड माइन. ग्लॉसोपेट्रिस. ओके, ग्लॉसोपेट्रिस का जो है वहाँ पे फॉसिल रिकॉर्ड्स मिला है. तो ये डिफरेंट स्पीशीज है ग्लॉसोपेट्रिस के, तो इतना याद रखना है आपको. नेक्स्ट देखिए, to mark the 40th foundation day of Department of Biotechnology, Union Minister launches Sujivika AI driven biotech product data portal है. ये क्या है? Biotech product data portal developed in collaboration with industry partners Able. ओके, तो ये याद रखना है. सुजीविका लॉन्च किया गया है यहाँ पे साइंस एंड टेक के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर. ओके, तो सुजीविका क्या है? AI ड्रिवन बायोटेक प्रोडक्ट डेटा पोर्टल है. ऑलराइट, तो ये देखिए, सुजीविका इज अ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट प्रेजेंट्स ऑथेंटिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इंपोर्ट डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड एक्सेसिबल फॉर्मेट. ऑलराइट, it provides sector-wise insights into biochemical products, industrial enzymes and other biotechnology imports. ठीक है, तो ये चीज़ें सुजीविका के बारे में दी गई हैं. नेक्स्ट देखिए, इंडिया जर्मनी कोलैबोरेशन की टू सस्टेनेबल वाटर फ्यूचर. इंडिया और जर्मनी के बीच में हुआ है. ओके, तो द इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजिक कॉन्क्लेव हुआ था ऑन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? सस्टेनेबल वाटर फ्यूचर के बारे में कुछ चीज़ें कही गई है. डिलीवरिंग द ओपनिंग एड्रेस किया था रिनोन कंजर्वेशनिस्ट डॉक्टर राजेंद्र सिंह. डॉक्टर राजेंद्र सिंह इज नोन एज द वाटर मैन ऑफ इंडिया. यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, नेक्स्ट देखिए, this comes under Ministry of Social Justice and Empowerment. तो यहाँ पे Department of Social Justice and Empowerment to mark World Day of Social Justice with preamble reading at National Law University द्वारका में ये हुआ था. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. We are almost at the end of the PDF, I guess. पंखुड़ी पोर्टल हुआ है हमारा. या Ministry of Women and Child Development, Government of India hosted a 17-member delegation of the European Parliament's Committee on Women's Rights and Gender Equality. इसको FEM कमेटी कहते हैं. इसका कुछ फुल फॉर्म नहीं है, उसका नाम ही विमेंस राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी है, FEM कमेटी. तो वहाँ पे क्या हुआ था? एक डेलीगेशन की मीट हुई थी. ओके, so I'm sorry for the background noise if any. Okay. या नेक्स्ट देखिए, अपेडा फैसिलिटेटेड फ्लैग ऑफ फर्स्ट GI टैग सालेम सागो कंसाइनमेंट फ्रॉम तमिलनाडु टू कनाडा. ओके, तो सागो पता होता है ना, सागो क्या होता है? ऑलराइट, तो उसका क्या हुआ? फ्लैग ऑफ किया है फर्स्ट GI टैग. ओके, द Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) under the Ministry of Commerce and Industries facilitated the export of 0.5 metric ton of GI tagged Salem Sago from Salem, Tamil Nadu to Canada. This marked the first export consignment shipped directly by the GI authorized user Sago Surf. Okay, since the product achieved the GI tag. Okay, Tamil Nadu क्या है? is the largest producer of tapioca sago, also commonly known as साबूदाना. सबको पता होगा साबूदाना क्या है. तो Salem has been long recognized as the hub of the country's sago and starch industry. sago कहाँ से derive होता है? tapioca के root से होता है. serves as a staple food across several parts of India. GI registration for Salem sago was obtained 2023 में उनको बस मिला था. यही चीज़ें हैं. नेक्स्ट देखिए,
इंडिया एंड इजराइल लॉन्च फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इजराइल अभी बहुत न्यूज़ में है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, मैपिंग है, करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। The first round of negotiations for the India-Israel Free Trade Agreement commenced on 23rd February वगैरह scheduled to take place. The terms of reference साइन हुआ था वहाँ पे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन हो गया, नवंबर में किया गया था। टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज स्टूड एट US डॉलर्स 3.62 बिलियन 2024-25 में। इंडिया एंड इजराइल शेयर कॉम्प्लीमेंट्रीज अक्रॉस सेवरल सेक्टर्स एंड FTA विल बी अ कैटलिस्ट ऑब्वियसली। ओके, इसके बाद देखो इसके साथ साथ ही हमने जनवरी में ही यूरोपियन यूनियन के साथ भी FTA साइन किया था। तो इंडिया इज साइनिंग मेनी मोर FTAs। ओके, दिस बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट देखिए, इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल साइन जॉइंट स्टेटमेंट ऑन द इंडिया GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगेन देखिए उसके नीचे एक न्यूज़ आ गया अभी, इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने भी क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में आए हैं, NCST सेलिब्रेट्स 23rd फाउंडेशन डे। ओके, तो द यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर श्री जुआल ओरम रिलीजेस क्या है, NCST वहाँ पे हैंडबुक भी रिलीज किया गया था। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक हाँ, आई एम सो सॉरी। ओके, ये ज़रा अलग से मर्ज हो गया है, ये पुरानी ही न्यूज़ है ये वाली। ओके, here is the new news. Minister of Tribal Affairs showcases AI-driven tribal development initiatives at India AI Summit. तो वहाँ पे देखिए this becomes very 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 important for us. तो ये आदिवानी है। आदिवानी क्या है, AI powered translation and linguistic preservation platform है, designed to document, preserve, promote tribal languages and dialects. Okay, very important. System enables text to text and text to speech translation है, optical character recognition है, facilities access to government schemes, informational resources in tribal languages के लिए ये आदिवानी ये लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ट्राइबॉट चैटबॉट है। ट्राइबॉट चैटबॉट क्या है, मल्टीलिंगुअल कॉन्वर्जेशनल AI असिस्टेंट दैट डिलीवर्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन मिनिस्ट्री स्कीम्स एंड सर्विसेज। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो ट्राइबल एरिया में अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट बाय इनेबलिंग इंटरैक्टिव इंस्टेंट क्वेरी रेजोल्यूशन है ये। ओके, ट्राइबॉट स्ट्रेंथन सिटीजन एंगेजमेंट। इसके बाद देखिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA डिजिटल प्लेटफॉर्म निकाला गया है, and AI enabled governance solution streamlining, claim submission verification, GIS based mapping है, workflow monitoring है, grievance redressal under forest rights जो एक्ट है। ओके, उसका ही डिजिटल प्लेटफॉर्म निकाला गया है। नेक्स्ट देखिए, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कल्चरल प्रेजर्वेशन, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर आई एम सो सॉरी यस तो ये जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है ये हमने जनवरी के PIB में ही कवर किया है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आया है, रिलीज ऑफ द अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन गुजराती एंड तमिल लैंग्वेजेस एंड द लेटेस्ट लीगल ग्लॉसरी है इंग्लिश हिंदी ऑन क्या है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। ये कब होता है, 21 फरवरी को होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये याद रखना है आपको। और ये कुछ नहीं है, बस अलग लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया है। लीगल ग्लॉसरी भी रिलीज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC टू होस्ट नेशनल सिम्पोजियम ऑन कस्टम्स रिफॉर्म्स एंड इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2026 विद द थीम कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट। ये इनकी थीम भी है, तो बस ये याद रखना है आपको। इंटरनेशनल कस्टम्स डे है 25 फरवरी को। ओके, उनकी थीम हुई थी कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट, दैट्स इट। इसके बाद और क्या है, लेट्स सी,
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में है NHAI टू डेवलप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बी कॉरिडोर्स। तो ये एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बी कॉरिडोर्स रिलीज होने वाले हैं, बनाने वाले हैं अलॉन्ग द नेशनल हाईवेज। तो ये क्या है? रीआइटरेटिंग इट्स कमिटमेंट टू द सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, NHAI हैज अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव टू डेवलप पॉलिनेटर और बी कॉरिडोर्स अलॉन्ग द नेशनल हाईवेज। ठीक है। The bee corridor will have a continuous linear stretch of bee-friendly vegetation लगाएंगे, comprising flowering trees and plants that will ensure the viability of nectar and pollen throughout the year। है ना? तो हम अक्सर देखते हैं रोड्स पे अलग अलग जो प्लांट्स लगते हैं, पर दे आर नॉट वेरी मच बी फ्रेंडली। तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह लगाएंगे ताकि इट बिकम्स a constant source of pollen and nectar for the bees, right? Next देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में तिरुपति ट्रैश टर्न्स ट्रेंड सेंटर। तो बस तिरुपति में जो भी ट्रैश है ना, वहाँ से उन्होंने अपसाइकिल करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, Tirupati Municipal Corporation has scripted an inspiring story of circular economy through its comprehensive upcycling initiative। तो you can use this in your essays or any case study, alright? तो regional level की है ये, where waste doesn't end its journey, it begins new one, guided by the belief of स्वच्छ आदत से स्वच्छ भारत। तो वही उन्होंने अपसाइकिल करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में आया है INS अंजदीप बिल्ट विथ इंडिजिनस सेल स्टील टू जॉइन इंडियन नेवी फ्लीट। वही है, सेम न्यूज़ है, वहाँ पे क्या है, सेल का स्टील यूज़ हुआ है बस। नेक्स्ट देखिए यस, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA कैबिनेट अप्रूव्स MSP फॉर रॉ जूट। ठीक है, 2026-27 सीजन के लिए MSP किया है, रॉ जूट के लिए निकाला गया है। नेक्स्ट आई थिंक दिस वाज डन, एम्स संवाद। यस, अटल इनोवेशन मिशन लॉन्चेस AIpreneurs ऑफ इंडिया एट द AI इम्पैक्ट समिट। तो AI इम्पैक्ट समिट में बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, तो उसकी एक ही न्यूज़ आती रहेगी, राइट? बुक सेलिब्रेट्स इंडियाज अनसंग इनोवेटर्स शेपिंग द फ्यूचर ऑफ AI, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण लॉन्चेस व्हाट, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अलाइंस विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ विकसित भारत इनिशिएटिव वगैरह चीज़ें दी गई हैं। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। ये क्या है, सेकेंड फेज ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़। ओके, तो इट हैज़ बीन डेवलप बाय नीति आयोग इन कंसल्टेशन विद इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन मिनिस्ट्रीज वगैरह दिया है, और फॉर एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30। ओके, तो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो ये बस कुछ चीज़ें दी हैं मैंने कि सेक्टर्स देखिए, हाईवेज, रेलवेज, ये सेक्टर्स जो है कवर्ड है, टेलीकॉम, टूरिज़्म वगैरह। ओके, और ये PIB में एक फ़ोटो आया था, बट आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी क्लियर, उन्होंने अच्छे से नहीं दिया है ये। द अप्रोच टू एस्टिमेशन ऑफ मोनेटाइजेशन पोटेंशियल अंडर NMP 2.0 इज़ डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस दिया गया है। आई डोंट नो हाउ क्लियर इट इज़, बट आई रीड इट फॉर यू। ओके, तो फर्स्ट स्टेज इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट्स, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सूटेबल मोनेटाइजेशन मोड, देन एस्टिमेशन ऑफ टोटल मोनेटाइजेशन वैल्यू, फोर्थ स्टेज है एस्टिमेशन ऑफ एग्रीगेट मोनेटाइजेशन वैल्यू, एंड फाइनली फिफ्थ स्टेज है एलोकेशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम द मोनेटाइजेशन। तो ये उनके 5 जो है स्टेजेस है ऑफ हमारा क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो आई थिंक we have covered the entire news for the month of February। okay, ये बस PIB headquarters में ये कुछ themes आई हैं। okay, just remember a few things। यहाँ पे एक न्यूज़ है, गिनीज रिकॉर्ड मार्क्स इंडियाज AI resolve। देखिए more than 250,000 citizens commit to responsible AI। तो यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था AI इम्पैक्ट समिट में। ओके, द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल फॉर द मोस्ट प्लेजेस
मोस्ट प्लेजेस रिसीव्ड फॉर एन AI रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन इन 24 आवर्स। ठीक है, तो ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है हमारा। उसके बाद मानव क्या है, देखिए PM नरेंद्र मोदी ह्यूमन सेंट्रिक AI ओडिसी। ओके, he encapsulated this human-centric vision in the acronym MANAV, presenting a roadmap where technological advancement, progresses, harmony वगैरह। values क्या है इनके, देखिए moral and ethical systems, accountable governance, national sovereignty, accessible and inclusive AI, and valid and legitimate systems. You can use this acronym anywhere. Okay, so yeah, I think we have reached the end of the PDF. Okay, thank you so much for continuing throughout the session. Okay, and supporting this initiative. All right, and I hope someday PIB sees my videos and maybe hires me. That is just a wish. Okay, so just a second. Yeah, that's it. Okay, so let's meet in the next session. Okay, March का जब हम करेंगे compilation, March 1 to 15. Okay, we'll meet in the next video. Thank you everyone.